So, very good evening, all the participants. Today we will be starting with this pre-pack process. And I hope my screen is visible to you. Is it visible? Yes. Yes, sir. So, pre-pack. Pre-pack as the name itself implies there is something pre-packaged. And this pre-packaged is done by the corporate debtor itself. So, he is offering a base resolution plan. He is offering something on his own, and this is restricted to corporate MSMEs only. And as we know, the definition of MSME has also undergone changes from time to time. But we have to keep in mind the definition which is applicable for our syllabus, right? So section 54A. What section 54A says? Section 54A says that the corporate debtors eligible for prepackaged insolvency resolution process. So what it says? An application for initiating prepackaged. Shruti Pandey, are we audible to you? So section 54A, corporate debtors eligible for prepackaged insolvency. Shruti Pandey, are we audible to you now? यस सर अभी मैंने दूसरे सिस्टम से सर एक्चुअली लैपटॉप में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है. Okay. So मैंने 54A, corporate debtors eligible for prepackaged insolvency resolution process. So 54A1 says that an application for initiating prepackaged insolvency resolution process may be made in respect of a corporate debtor classified as MSME under subsection 1 of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. So any enterprise which is classified as MSME under subsection 1 of section 7. So section 7 talks of the classification criteria and section 8 talks of the registration as MSME. So the reference here is to section 7. So that means the classification is important. So if a corporate debtor is falling under any of the categories which are classified as MSMEs, so then he is eligible to make this application, right? And since it is covered in part 2, so only corporate debtors are eligible, not the individuals or partnerships. This is another important thing. Because MSME could be anyone. MSME could be a partnership firm also. But this process, prepackaged insolvency resolution process, it is applicable only to the corporate debtors which are classified as MSME under section 7. And without prejudice to, so first condition is CD and then MSME. Now 54A2, without prejudice to subsection 1, an application for initiating prepackaged insolvency resolution process may be made in respect of a corporate debtor who commits a default. So third condition is default. Default is also important. Unless there is a default, application cannot be made. And referred to in section 4. So section 4 talks of two types of default. In respect of corporate debtors, the default amount is 1 crore rupees. And in case of pre-pack process, the default amount is 10 lakh. 10 lakhs. Right? This is the minimum amount. There is no maximum limit. Right? So section 4, if we see, section 4 has got a proviso. Second proviso, provided further that the central government may by notification specify such minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 crore rupees for matters relating to prepackaged insolvency resolution process, right? And then they issued a notification. So they said that 10 lakhs is the limit for this prepackaged insolvency resolution process. Now, we have seen three conditions. One is it should be CD. Second is it should be MSME. And third is there should be a default. Right?
it has not undergone prepackaged insolvency resolution process or completed CIRP. So no PPIRP, no CIRP during the period of 3 years preceding the initiation date. And initiation date, as you all know, is the date of filing of the Right. application. So this thing has to be seen at the time of filing of the application. It is not undergoing a CIRP. So there could be a condition because this law came in 2021, and prior to that also CIRP applications were being filed. So if it is already undergoing a CIRP, then this application cannot be made. No order requiring it to be liquidated is passed, and it is eligible to submit a resolution plan under section 29A. Why this condition? Because here the corporate debtor itself will place the first resolution plan, which is known as the base resolution plan. So if that corporate debtor is ineligible to submit a resolution plan under 29A, then also this application cannot be made. Now here one important question. It says it is eligible to submit a resolution plan under section 29A. But one of the conditions of section 29A is there should not be any default, right? So if there is an NPA account and more than 1 year is lapsed, so then you cannot make this application. Then how this process will be applicable? So for this, they've said in section 240 capital A that the two conditions 29AC and 29AH will not be applicable in respect of this pre-pack insolvency resolution process. So there could be a condition where the corporate debtor has committed a default and more than 1 year has lapsed, but still he will be able to submit a resolution plan because 29AC and 29AH regarding guarantee is not applicable for this pre-pack insolvency resolution process. ठीक है? सर Yes. सर एक बार फिर से समझो ना सर, ये सी और एच वाला देखिए, था ऐसा है 29AC क्या बोलता है? 29AC कहता है कि एनपीए वाला सर, if you एनपीए और have an एच वाला NPA गारंटी। account, if हाँ the applicant, resolution applicant has got an NPA account, or any of the company which is under its control has got NPA account, right? And 1 year has lapsed since the account became NPA. हाँ So then he will not be able to submit a resolution plan. This is 29AC. ओके सर। Similarly, 29AH is also there. 29AH says that if you have given a guarantee and that guarantee has been invoked and it remains unpaid, then you cannot submit a resolution plan. These are the two ओके conditions. But Okay, both sir. these conditions will not be applicable in case of PPIRP process. Why? Because 240 capital A allows this resolution plan in respect of a corporate debtor which is undergoing this CIRP process, insolvency resolution process. 248 specifically allows this thing. ठीक है, चलिए, ये यहां पर क्यों आया? ये इसलिए आया बिकॉज द कॉर्पोरेट डेटर हियर विल बी सबमिटिंग द रेजोल्यूशन प्लान. यहां तो कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है ना इनिशियली, जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है. तो अगर वो 29A में ही इनएलिजिबल है, 29 डिफॉल्ट तो हुआ ही है, डिफॉल्ट हुआ है तभी तो यहां पर आ रहे हो ना पीपीआईआरपी में आप. और 29AC कुछ अलग बोलता है, वो बोलता है डिफॉल्ट हो तो आप आ ही नहीं सकते, है ना, आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन ही नहीं सकते. और यहां कहते हो आप सीडी को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनोगे. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं कर रहा था कि हाउ दिस कॉन्ट्राडिक्शन विल बी रिजॉल्व, क्योंकि 240 कैपिटल ए अलाउज दिस थिंग. ठीक है, क्लियर है? यस सर। दिस इज दी नोटिफिकेशन. ये नोटिफिकेशन क्या बोलती है? ये नोटिफिकेशन मैंने यहीं पे लगा दिया. ये नोटिफिकेशन बोलती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट जो है 10 लाख है. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby specifies 10 lakh rupees as the minimum amount of default for matters relating to prepack. ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, ज्यादा छोटा छोटा इसीलिए आपको नजर आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, है ना. चलिए आगे देखते हैं. यस सर।
उसके बाद ये हो गया पॉइंट आपका। हम्म। अब इसके साथ हमारे को क्या पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने और रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं। एक बार रूल्स देख लेते हैं। रूल्स 1 2 3 क्या कहते हैं। रूल्स 1 2 3 ये रूल्स हैं हमारे। इसमें छोटे थोड़े से ही रूल्स हैं। तो रूल्स में क्या बोलता है, एक तो बोलता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। क्या है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज प्रोसेस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54C ऑफ द कोड इन फॉर्म 1। ठीक है। आर accompanied with affidavit documents or records as referred in excerpts therein in electronic form along with a fees of rupees 15,000। ठीक है। और a copy of the application is to be given by registered post or speed post or by hand or by electronic means before filing it with the adjudicating authority। किसको देनी कॉपी, बोर्ड को। ठीक है। A corporate applicant shall inform the adjudicating authority about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such filing। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, which is the application by corporate applicant to initiate pre-packaged insolvency resolution process। ये फॉर्म 1 है। ठीक है। एक ही फॉर्म है यहाँ पर और इसके साथ में एनेक्सर्स दे रखे हैं। ये सारे एनेक्सर्स आपको लगाने हैं। ठीक है। इतना ही है हमारा जो इसके रूल्स है। ये था हमारा 281। एक मिनट। ठीक, चलिए। अब यहां पर थे हम लोग। ये कंडीशंस देख ली। उसके बाद में क्या करना है आपको। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग सच नंबर एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड have proposed the name of the insolvency professional to be appointed as resolution professional for conducting the prepackaged insolvency resolution process of the corporate debtor and the financial creditors of the corporate debtor not being its related parties representing not less than 66% in value have approved such proposal in such form as may be specified। मतलब बेसिकली क्या है, देयर आर टू थिंग्स। वन, प्रपोजिंग द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब यहां देखिए कि प्री पैकेज में हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है एक्चुअली प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यहां जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वही एप्लीकेशन लगा रहा है। ठीक है। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3 या सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ही होगा शायद, है सेक्शन 5 में ही होना चाहिए। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर आ गया और मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आ गया या फिर सीईओ सीएफओ वगैरह कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5। अब यहां क्या कहता है पॉइंट ई में, यहां दो बातें करता है। देखो नॉर्मली जब कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगाता है तो वो आईपी का नाम दे देता है। ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है तो भी कॉर्पोरेट जो आईआरपी का नाम दे देता है। अब यहां क्या है, यहां प्रोसेस क्या है, बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। प्री पैकेज, प्री पैकेज में क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर ही एप्लीकेशन लगा सकता है थ्रू कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कोई फाइनेंशियल डिफॉल्ट तो हुआ, लेकिन जो जिसका डिफॉल्ट हुआ चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। ठीक है। उसको अगर जाना है तो नॉर्मल सीआईआरपी में ही जाना है, यहां नहीं जा सकता। तो अब इसमें क्या है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है 10 लाख रुपीस और वहां कितना है सीआईआरपी में 1 करोड़। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन लगानी है तो कम से कम डिफॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट है तो वो फिर सीआईआरपी में एप्लीकेशन लगा नहीं सकता, यहां पर वो वैसे नहीं लगा सकता। ठीक है। तो वो फिर सिविल कोर्ट या कमर्शियल कोर्ट्स में जाएगा या डीआरटी में जाएगा अगर सिक्योर्ड लोन है।
अब यहां क्या लिखता है, यहां प्रोसेस क्या है, ये पॉइंट नंबर ई क्या बताता है, पॉइंट नंबर ई बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी कैसे होगा। बेसिकली दिस पॉइंट इज डीलिंग विद अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी में वो ये कहता है कि भैया ऐसा है कि कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे किसका नाम, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि जिसको आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है, और 66% उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, और इसमें रिलेटेड पार्टी जो है वो नहीं आएंगे। और इसके बारे में रेगुलेशन जो है, ये पूरा रेगुलेशन कहाँ है, रेगुलेशन नंबर 14 है। तो हमें इसको रेगुलेशन नंबर 14 के साथ पढ़ना है। रेगुलेशन 14 क्या बोलता है, ये रेगुलेशन 14 है, अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 and subsection 3 of section 54A, the applicant shall convene meeting of the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor। तो ये एप्लीकेंट क्या करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो कि रिलेटेड पार्टीज नहीं होगी। ठीक है, नोटिस देना है, नोटिस ऑफ द मीटिंग अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी सर्व टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एट लीस्ट 5 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग अनलेस ए शॉर्टर मीटिंग टाइम इज एग्रीड टू बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है, 5 दिन का नोटिस देगा और 5 दिन के नोटिस पर यह मीटिंग बुलाएगा। और नोटिस में क्या रहेगा, नोटिस है आपकी फॉर्म नंबर P2 में। ठीक, द नोटिस ऑफ द सही। मीटिंग अंडर दिस रेगुलेशन शैल इंडिकेट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग and enclose a list of creditors along with the amount due to them in form number P2। तो सबसे पहले ये एक फॉर्म P2 बनाएगा कॉर्पोरेट डेटर जो पीपीआईआरपी में जाना चाहता है। ठीक है, और फॉर्म P2 क्या है, फॉर्म P2 बेसिकली डिटेल्स है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है, ये है फॉर्म P2। ये फॉर्म P2 है जिसमें नेम ऑफ क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ क्लेम, परसेंटेज ऑफ लोन वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स। ये सबसे पहले इसने डिटेल बना ली, इससे इसको पता चल गया कौन से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, कौन से रिलेटेड है, कौन से अनरिलेटेड है। ऐसे ही ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में भी कौन से रिलेटेड और कौन से अनरिलेटेड है, ये सारी बातें इसको पता चल गई इस लिस्ट बनाने पर। अब इसको क्या करना है, यहां यहां थे अब वो। ठीक है, अब इसने क्या करना है, बेसिकली एक लिस्ट बनाई फॉर्म नंबर P2 के अंदर। फॉर्म P2 के अंदर लिस्ट बना के 5 days का नोटिस दिया, किसको दिया, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं विच आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, अब the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor and have not less than 10% of the value of the total financial debt of such creditors may propose the name of the insolvency professionals for the purpose of clause E of subsection 2 of section 54A। अब जिनका डेट जो है वो 10% है कम से कम। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 पार्टीज का 10-10% है तो 10 के 10 नाम प्रपोज कर सकते हैं, है ना। तो जिनका भी डेट 10% या उससे ज्यादा है वो नाम प्रपोज कर सकते हैं। अब आप कहोगे जी मीटिंग में तो सारे बुला लिए हैं और प्रपोज सिर्फ यही कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोगों का क्या रोल है, उनको क्यों बुलाया। वो कहते हैं भाई हमें क्यों बुलाया जब हम नाम ही नहीं प्रपोज कर सकते। तो कहते हैं देखो भाई ऐसा है, नाम आप प्रपोज नहीं कर सकते और आप वोट कर सकते। ठीक है, वोटिंग तो करनी है ना, क्योंकि एक से ज्यादा नाम आ सकते हैं। अगर एक ही नाम आया फिर तो कोई इश्यू नहीं है, अगर एक से ज्यादा नाम आ गए तो भी 66% वोट से अप्रूव करना है। The approval of the terms of appointment of the resolution professional under clause E of subsection 2 of section 54A shall be in form P3। इनका जो अप्रूवल होगा ये होगा फॉर्म P3 के अंदर। ठीक है, द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर दिस रेगुलेशन शैल इंक्लूड, पहला, फीस पेएबल टू हिम फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54B। ठीक है, 3 तरह से इसको फीस पेएबल होती है। इसमें हमारे को पीपीआईआरपी में क्या ध्यान में रखने वाली बात है, पीपीआईआरपी इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉर्पोरेट एमएसएमईज। गवर्नमेंट एमएसएमईज को एनकरेज करना चाहती है, तो और हर कोई आदमी इन कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि पहले आप अपना डिसीजन ले लो। अपने डिसीजन में क्या है, आपकी कंपनी होगी या एलएलपी होगी, है ना। तो पहले अपना डिक्लेरेशन फाइल करो,
अप्रूवल ले लो शेयर होल्डर से या मेंबर से, अपना आरपी अपॉइंट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, और उससे ये चीजें चेक करवा दो। क्या चीजें? एक तो जो बेस रेजोल्यूशन प्लान आपने बना रखा वो चेक करवा दो कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, और फिर उसके अलावा कि एप्लीकेशन कंप्लीट है क्या नहीं। जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी कि भाई एमएसएमई होना चाहिए, डिफॉल्ट होना चाहिए, कोई पीपीआईआरपी नहीं है, कोई सीआईआरपी नहीं है, ये सब कौन चेक करेगा? ये ये वाला आरपी चेक करेगा। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पर फिर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। ठीक है, और इस सब एक्टिविटीज के लिए कितना पीरियड दिया उन्होंने? 90 डेज। तो उन्होंने कह दिया भाई देखो ऐसा है कि कुछ ड्यूटीज आपकी ऐसी हैं जो बिफोर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, बिफोर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, उसमें आप अपना पेस रेजोल्यूशन प्लान जो आपने बना रखा वो चेक करवा लो, आरपी की अपॉइंटमेंट कर लो, और उसके अलावा एप्लीकेशन चेक करवा लो कि एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, या जो भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। अब उसके लिए भी कुछ फीस तो देनी पड़ेगी ना आरपी को। तो जब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ये बात कर लेते हैं भाई इस काम की आप क्या फीस लोगे, अभी ये नहीं कि एप्लीकेशन एडमिट हो गई है ना, एप्लीकेशन एडमिट हो नहीं हो, आपको तो ये काम करना ही करना है, तो इस काम की अपनी फीस बता दो। दूसरी, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाए तो कितनी फीस लोगे आप। और तीसरा भी इसमें केस है, नॉर्मली क्या होता है इन कॉर्पोरेट एमएसएमईज में, एक और फायदा है पीपीआईआरपी में कि जो कंट्रोल है वो कॉर्पोरेट डेटर के पास ही रहता है। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर ही फ्रॉड करने पर उतर आए तो फिर उस केस में क्या होगा कि मैनेजमेंट, सीओसी क्या कहती है, सीओसी विद 66% मेजोरिटी मे डिसाइड टू वेस्ट द मैनेजमेंट विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशन। तो उस केस में उसकी ड्यूटीज बढ़ जाएंगी। नॉर्मली तो कंप्लायंस के लिए सीडी ही जिम्मेदार रहता है पीपीआईआरपी में, है ना। लेकिन अगर सीडी को हटा दिया, सीडी का कंट्रोल हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, आरपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, फिर उसकी ड्यूटीज बढ़ जाएंगी। तो उसको कहते हैं भाई ये तीसरे सिचुएशन में भी तुम अपनी फीस बता दो। तो तीनों सिचुएशंस में अपनी फीस आप बता दो, क्या क्या फीस लो। सबसे पहला तो देखो भाई, पहला काम आपका क्या है, आपको हमने एक बेस रेजोल्यूशन प्लान बना रखा, उसको चेक करना है ना। उसके अलावा देखना है कि कंडीशंस हमारी मीट हो रही है कि नहीं हो रही सारी, है ना, कि डिफॉल्ट है कि नहीं, पीपीआईआरपी तो नहीं है, सीआईआरपी तो नहीं है, ये सब चीजें, एमएसएमई हम हैं या नहीं है, ये सब बात है। ठीक है, और अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 इज शैल बी इन फॉर्म P4। तो ये अगर सारी चीजें कंप्लीट है तो आप अप्रूवल के लिए लगा दोगे, अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी इन फॉर्म P4। अब ये अप्रूवल और फाइलिंग दोनों अलग अलग कैसे हैं? ये फॉर्म P4 क्या है पहले देख लेते हैं कि फॉर्म P4 और फॉर्म ए में क्या, फॉर्म P4 है ये रहा, एप्लीकेशन अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें ये बताता है कि जी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये सेलेक्ट हुआ, ये डॉक्यूमेंट थे सारे, है ना, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह, ये सारी चीजें अप्रूवल फॉर इनिशिएशन, ये आपने P4 फॉर्म लगा दिया। अब P4 और जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें क्या फर्क है? अभी हमने पढ़ा था कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्म नंबर 1, वो फॉर्म 1 दे रखा है आपको एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में, ये रूल्स का नाम है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रूल्स। ठीक है, तो फॉर्म 1 में तो एप्लीकेशन लगनी है, और फॉर्म P4 में अप्रूवल है फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, और ये क्रेडिटर साइन कर रहा है। चलिए दोबारा से चलते हैं हम लोग 54A पर। हम्म, तो यहां पर थे हम लोग रेगुलेशन नंबर 14 पर। तो रेगुलेशन 14 में क्या किया इन्होंने, एक आरपी को अपॉइंट कर दिया और उससे पूछ लिया कि भाई 3 तरह से फीस आप बता दो, कैसे कैसे हमें से फीस लो। ठीक, और अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं या सारे ही रिलेटेड पार्टीज हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये
अप्रूवल लिया जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है 10 in this case, sir. है, हाँ हाँ, यहां पर ये 10. 10 है। ये बोलता है ये यहां क्या कहता है, where the corporate debtor has no financial debt or where all financial creditors are related parties, the applicant shall convene a meeting of operational creditors who are not related parties of the corporate debtor, and provisions of sub regulation 1 to 7 shall mutatis mutandis apply। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये तो कमिटी विद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। चलिए दोबारा वहीं चलते हैं, यहां पर आ जाएंगे बाद में हम। ये उसके बाद majority of the directors or partners of the corporate debtor, as the case may be, have made a declaration in such form as may be specified, stating inter alia that the corporate debtor shall file an application। ये जो कॉर्पोरेट डेटर है एप्लीकेशन फाइल करेगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं। ठीक है, और पीरियड विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम 60 डेज में फाइल करेंगे, वहां पर डेज का कॉलम ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, एंड द नेम्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज आरपी अंडर क्लॉज ई। अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। ठीक है, और इसके साथ में आपका रेगुलेशन नंबर 16 है। ये रेगुलेशन नंबर 16 क्या बोलता है, ये रेगुलेशन नंबर 16 इससे पहले ये रेगुलेशन 16 है। रेगुलेशन 16 बोलता है कि डिक्लेरेशन का भी फॉर्म है। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है ये है फॉर्म नंबर P5। P6। हाँ फॉर्म P6। ठीक है, हाँ डिक्लेरेशन है फॉर्म नंबर P6 में। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिक्लेरेशन दिया जाएगा, और इसमें क्या कहा जाएगा कि भाई ये डायरेक्टर्स हैं, है ना, और क्रेडिटर्स ने इनका नाम अप्रूव कर दिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। ये सारी बातें इसके अंदर लिख रखी। ठीक है, और कंटेंट्स ऑफ दिस डिक्लेरेशन आर ट्रू एंड करेक्ट। ये आपका फॉर्म नंबर P6 है। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारा। डिक्लेरेशन के बाद में जो मेंबर्स हैं उनको भी क्या करना है, मेंबर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन केस ऑफ कंपनी, या फिर अगर एलएलपी है तो एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर है पास्ड ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या चीजें हो गई, एक तो जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्होंने प्रपोज किया नाम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दोज कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट देन 10% ऑफ द डेट, फिर विद 66% अप्रूव किया नाम को, उनसे तीनों तरह की फीस ले ली, उसके बाद में डिक्लेरेशन हो गया, और डिक्लेरेशन के बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन इन केस ऑफ एलएलपी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक और फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेना है। क्या ये लेना है फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। The corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditors, not being its related parties, representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application। ठीक है,
अब इनको एक अप्रूवल लेना है फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एक तो अप्रूवल ले लिया फॉर नेम अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट, और एक अप्रूवल हो गया फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक। और अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है या सारे रिलेटेड पार्टीज हैं, तो फिर अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन्स एज में बी स्पेसिफाइड। रेगुलेशन नंबर 14 है। तो रेगुलेशन 14 क्या बोलता है? ये रेगुलेशन 14 बोलता है अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और तो उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है, इट शैल बी द प्रोविजंस ऑफ दिस सब रेगुलेशन 1 to 7 शैल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई। ठीक है। और ये जो अप्रूवल है फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये आपको लेना फॉर्म नंबर P4 के अंदर। तो ये अप्रूवल कौन दे रहे हैं? बेसिकली क्रेडिटर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये अप्रूवल। चलिए। हम्म। Prior to seeking approval from financial creditors under subsection 3, the corporate debtor shall provide such financial creditors with क्या क्या इनको चीज देगा? ये डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कौन दे रहे हैं? बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब यहां ध्यान में रखने वाली बात ये, एक तो ये है कि मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी है, यहां कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है। और क्या लिखा है? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड नहीं लिखा यहां, यहां वर्ड लिखा पार्टनर्स। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन में 3/4 चाहिए, जो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। लेकिन जो डिक्लेरेशन है दैट कैन बी डन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। दोनों में फर्क है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जब आपने अप्रूवल लेना है फॉर्म P4 में, उससे पहले आपको क्या करना है? उनको प्रोवाइड करना है क्या? एक तो डिक्लेरेशन, फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन और फिर एक बेस रेजोल्यूशन प्लान which conforms to the requirements referred to in section 54K and such other conditions as may be specified. ठीक है, such other information and documents as may be specified. तो अभी तक का हमारा जो प्रोसेस है 54A वाला, 54A में हमने क्या क्या पढ़ लिया? 54A में सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट MSMEs पर ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा सकता है। ये सारी कंडीशंस, कोई PPIRP, कोई CIRP, कोई लिक्विडेशन ऑर्डर, कोई CIRP नहीं चल रही है, ही इज एलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, 10 लाख की लिमिट है। फाइनेंशियल एक P2 में एक लिस्ट बना लेगा कॉर्पोरेट डेटर, और उस P2 लिस्ट के बेसिस पर एक मीटिंग कॉल करेगा ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, उसमें से जिनका डेट 10% या उससे ज्यादा है वो प्रपोज करेंगे नेम ऑफ RP। ठीक है, और एक से ज्यादा अगर नाम होगी तो वोटिंग हो जाएगी, और वोटिंग होने के बाद जिसको वो 66% मेजोरिटी मिल जाएगी तो फिर वो अपॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो अल्टीमेटली विल बी बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ओनली, लेकिन यहां पर इन्होंने प्रपोज और अप्रूव कर दिया, और उससे फीस मांग लेंगे। भाई 3 तरह से फीस आपको देनी पड़ेगी, बताओ। आपको तीनों तरह की फीस बता दो। पहला कि अभी तो हम 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, तब तक आप ये सारी रमान 54A में जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई कर लो। ये देख लो कि रेजोल्यूशन बेस रेजोल्यूशन प्लान है विच इट कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स, और सारी कंडीशंस कंप्लाई विद हो गई हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स शेल फाइल है डिक्लेरेशन। नंबर ऑफ पार्टनर्स 3/4, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ कंपनी, दे विल पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसके बाद में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी अप्रूव करेंगे विद 66% मेजॉरिटी फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को क्या देना है? इंफॉर्मेशन ये देनी है, एक तो कि भाई हमने डिक्लेरेशन पास कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, और एक बेस रेजोल्यूशन प्लान, और भी जो भी कंडीशंस सेटिस्फाई होती। ठीक, तो 90 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन में ये लिखते हैं कि भैया हम 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, इसमें हमारा कोई फ्रॉड करने का कोई इरादा नहीं है,
और नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड। तो 54A हो गया। अब चलते हैं 54B पर। 54B क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन। बी का मतलब बिफोर इनिशिएशन। और ए क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज। तो ए एप्लीकेशन मान लो, बी मान लो बिफोर इनिशिएशन, अभी फाइल नहीं हुई, ठीक है। तो इसको क्या काम करना है 54B में? 54B से रिलेटेड काम कुछ कुछ तो हमने 54A में ही पढ़ लिया। क्या बोलता है? द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज द आरपी shall have the following duties commencing from the date of approval। तो जो डेट ऑफ अप्रूवल थी ना उसकी, ये अप्रूव किसने किया था? फाइनेंशियल क्राइटर्स, ठीक है, विद 66% मेजोरिटी। तो तब से उसकी ड्यूटी शुरू हो जाएंगी। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें कि इसकी ड्यूटीज कब से कमेंस होती हैं? ये होती है फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्राइटर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज विद 66% मेजोरिटी। ठीक। सबसे पहले क्या करना है इसको? ही हैज टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड। और ये फॉर्म इसका रिपोर्ट का भी फॉर्मेट है, P8 है। क्या फॉर्मेट का नाम है इसका रिपोर्ट का? रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में देनी है इसको? रिपोर्ट देनी है ना इसको आरपी को, तो उसका फॉर्म नंबर क्या है? क्यों काजल जी? P8 है। Sir, I'm seeing so. P8 है, रिपोर्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है, P8, ठीक है। उसके बाद फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज में बी स्पेसिफाइड, रेगुलेशन 17, एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड। तो रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 15 और रेगुलेशन 17 हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है रेगुलेशन 17? क्या बोलता है? ये रेगुलेशन 17 है। रेगुलेशन 17 में कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है कि रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट होगी फॉर्म P8 में, ठीक है। और ये फॉर्म नंबर P8 है, ये फॉर्म P8 है, रिपोर्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। ये सारी चीजें कंफर्म करता है कि भाई कोई लिक्विडेशन ऑर्डर नहीं हुआ है, ये CIRP नहीं चल रही है, क्वालिफाइड है, फलाना ढिमकाना, यही रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 9 और रेगुलेशन 15। रेगुलेशन 9 क्या बोलता है और रेगुलेशन 15 क्या बोलता है? ये रेगुलेशन 9 है। रेगुलेशन 9 बोलता है एक्सेस टू बुक्स, ठीक है। भाई हम उसको सारी चीजें ये देखनी है तो बुक्स में भी देखना चाहेगा, है ना। तो ही विल हैव एक्सेस टू बुक्स। और रेगुलेशन 15 बोलता है चॉइस ऑफ द AR, ठीक है। अब इसने फॉर्म P2 देख लिया, है ना। तो P2 के बेसिस पर क्या करेगा? इसको पता चलेगा कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है या नहीं है ना। भाई P2 क्या है? P2 लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ही तो है। ऑन एग्जामिनेशन फॉर्म P2 द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall ascertain class or classes of creditors if any. For representation of creditors in a class ascertained under subregulation 1 in the committee, identify 3 insolvency professionals who are not relatives or related parties of the applicant or the resolution professional, having their address as registered with the board in the state or union territory as the case may be, which is the highest number of creditors in the class as per their address in the records of the corporate data, और अगर वहां नहीं है तो नियर बाई स्टेट से ले लेंगे, ठीक है। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, विलिंग टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑब्टेन द कंसेंट, इनकी कंसेंट किस फॉर्म में लेनी है? इनकी Consent. कंसेंट लेनी है आपको फॉर्म नंबर P5 में। तो फॉर्म नंबर P5 देख लेते हैं कि फॉर्म P5 क्या है। ये है फॉर्म P5, रिटन कंसेंट टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब दोबारा हम चलते हैं भाई। ये 54B पर हम चल रहे हैं। ये बिफोर इनिशिएशन ड्यूटीज। तो बिफोर इनिशिएशन ड्यूटीज में इसने क्या क्या किया?
सबसे पहले रिपोर्ट बना दी फॉर्म P8 में। रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा बुक्स वगैरह को देख करके, और ये सारी कंडीशंस 54A में लिखी हुई है। और ये वाली ड्यूटीज कब खत्म हो जाएंगी? ये दोनों कंडीशंस में खत्म हो जाएंगी। पहला, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। दूसरा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। चाहे एप्लीकेशन एडमिट हो चाहे रिजेक्ट हो, तो ये वाली ड्यूटीज तो उसकी खत्म हो जाएगी। या फिर एप्लीकेशन ही नहीं बनाते आप, है ना। द कॉर्पोरेट डेटर फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्रीपैकेज विद इन द टाइम पीरियड एज स्टेटेड अंडर द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा था 90 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, तो ये भी हो सकता है कि 90 डेज में एप्लीकेशन ही ना फाइल करें, या अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी वो एडमिट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो दोनों केसेस में ये वाली ड्यूटीज खत्म, दूसरी ड्यूटीज शुरू हो जाएगी। ठीक है। द फीस पेएबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल in relation to the duties performed under subsection 1 shall be determined and borne in such manner as may be specified, and such fees shall form part of the prepackaged insolvency resolution process cost if the application is admitted। ठीक है, ये रेगुलेशन 7 और 8 है। तो रेगुलेशन 7 और 8 भी एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन 7 और 8 क्या बोलता है? एक मिनट, रेगुलेशन 7 एंड 8, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा छोटा है। ये रेगुलेशन नंबर 7 है। रेगुलेशन 7 क्या बोलता है? 7 है आपका ये, सेवन बोलता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन पर्सनल। एक मैं इसको पढ़ा, एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन पर्सनल में सब्जेक्ट टू कंसेंट इन फॉर्म P1। तो फॉर्म P1 कंसेंट के लिए फॉर्म है। एन इंसॉल्वेंसी पर्सनल shall be eligible to be awarded as IRP or RP as the case may be if he and all partners and directors of the IPE of which he is a partner or director are independent of the corporate debtor। ठीक है, कोई सारी सेम कंडीशंस हैं, और यहां पर जो परसेंटेज है वो है 5%। जो CIRP में परसेंटेज है वो 5% है। ठीक है, लिक्विडेशन में 10% है, फास्ट ट्रैक में कितनी है? 10%। हाँ, यहां पर है 5%। ठीक है, और 8 हो गया आपका फीस ऑफ द रेजोल्यूशन ट्रस्ट, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन or the application for initiation is rejected, the fees payable to the resolution personnel shall be borne by the corporate debtor। ठीक है, the corporate debtor shall maintain a separate bank account with such amount as may be advised by the committee from time to time, and subject to the provisions of clause 23C of section 5, such account shall be operated by the RP to meet his fees and expenses incurred by him for conducting the process। ठीक है, तो CD एक सेपरेट अकाउंट खोल देगा, और उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा? RP। पैसे उसमें कौन जमा कराएगा? CD। ठीक है, चलिए 54B पर थे हम लोग। अब हो गया हमारा 54C, एप्लीकेशन टू इनिशिएट। तो अभी तक हमने क्या किया? अप्रूवल ले लिया अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर से। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? आप एक PPI, आप एक CD हो, कॉर्पोरेट MSME हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो लिस्ट बनाएंगे P2 फॉर्म के अंदर। के अंदर, ठीक है, यस सर, P2 फॉर्म के अंदर लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम नोटिस देंगे। ठीक है, नोटिस देंगे। नोटिस कितने दिन का देना है? 5 डेज। 5 डेज नोटिस देंगे, 5 डेज का। और उस मीटिंग में क्या होने वाला, किसको बुलाएंगे उस मीटिंग में? अनरिलेटेड अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, और अगर अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, यस। ठीक है, और उसमें क्या करना है अपने को? तो बेसिकली काम करने हैं। सबसे पहले
तो हमें देख लेना है कि किनका 10% या उससे ज्यादा है। हम्म, उनको कहेंगे भाई आप आरपी का नाम प्रपोज करो, ठीक है, और फिर वोटिंग करा लेंगे, 66% मेजोरिटी से आरपी का नाम अप्रूव कर लेंगे, और फिर फॉर्म P3 में उससे डिटेल्स ले लेंगे। फॉर्म P3 बेसिकली क्या है? फॉर्म P3 में बेसिकली डिटेल्स है ऑफ द फीस। तीन तरह से उससे कह देंगे भाई आप फीस बताओ। पहला, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले क्या फीस होगी, एप्लीकेशन एडमिट हो जाए तो क्या फीस होगी, और अगर मैनेजमेंट भी आपके पास आ गया तो क्या फीस। उसके बाद डिक्लेरेशन हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा, और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का एक दूसरा अप्रूवल भी लेंगे, क्या? फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में 54B आ गया। 54B में ये आरपी अपना चेक कर लेगा और अपनी एक रिपोर्ट दे देगा फॉर्म P8 के अंदर। अब 54C, 54C क्या बोलता है? एप्लीकेशन टू इनिशिएट दी प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब अगर 54A की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है, ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ may file an application with the adjudicating authority for initiating PPIR. The application under subsection 1 shall be filed in such form containing such particulars in such manner and accompanied with such fees as may be prescribed. तो रूल 4 है उसके लिए, और रूल 4 के साथ में आपको फॉर्म नंबर 1 था ना इसका, यस सर, एप्लीकेशन के लिए तो फॉर्म नंबर 1 है। हाँ, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 1, ठीक है। और ये कहता है 15,000 रुपए की फीस इसके साथ लगानी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे हमने दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया, ये हो गया 54C। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश, ये सारी चीजें इसके अंदर लगानी है। क्या क्या लगाना है? डिक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन एज द केस में भी, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिंग पीपीआई, नेम एंड रिटन कंसेंट इन सच फॉर्म एज बीन स्पेसिफाइड ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपनी कंसेंट कौन से फॉर्म में दे रहा है? P1 में है ना, P1 में है ना भाई? हाँ ना तो बोल दिया करो, बुक आपके पास है, बुक में से देख लिया करो। फॉर्म P1 में ही है ना कंसेंट, जो आरपी ने कंसेंट देनी है P1 सर, फॉर्म नंबर P1 है फॉर ना? और कंसेंट ऑफ आरपी सर, यस हाँ, करेक्ट। ठीक है, चल। यस सर। और एआर को जो कंसेंट देनी है वो फॉर्म P5 है, कंसेंट ऑफ ER फॉर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स 3 days विंडो। हाँ, है ना, फॉर्म हाँ P5 सर। हो गया। हाँ सर। P2 हो गया आपका लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। यस P3 सर। क्या हो गया? P3 क्या था? P3 अप्रूवल में, इन टर्म्स ऑफ आरपी अपॉइंटमेंट हाँ, फर्स्ट आरपी एक्टिविटी। आरपी की फीस की चीजें हैं उसके अंदर सारी, है ना। यस। हाँ। और P4 क्या है? P4 है P जो क्रेडिटर्स का CD बेसिस टू है, ऑब्टेन 66। हाँ, अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये P4। यस। तो हाँ। P5 तक तो अपने को याद हो गए। P6 भी ध्यान में आ गया। P6 क्या है? हाँ डिक्लेरेशन है ना। परफेक्ट। हाँ। चल, तो छक्का तक तो मार दिया हमने, P6 तक हो हाँ। गया। हाँ पूछ लेता है कभी कभी वो एग्जाम में कि सही ये है फॉर्म सर। किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, डिक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन एज द केस में भी, एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिंग प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54A, द नेम एंड रिटन कंसेंट इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो P1 हो गया। फिर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा दैट मे बी विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर कोई PUFE ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उसके बारे में भी डिक्लेरेशन दे दीजिए। हम्म। PC1 सर, फॉर्म अब नंबर आप कहोगे PC1। कि भाई अपने क्या हमने फ्रॉड किया है, हम खुद ही डिक्लेरेशन देंगे क्या? यहाँ इसका पर्पज ये है बेसिकली, क्या होता है कंपनी भी ना, कई बार कंपनी चेंजेस हैंड्स, पहले कोई दूसरे डायरेक्टर रहे हो, अब नए डायरेक्टर आ गए, पुराने डायरेक्टर ने कुछ फ्रॉड किया हो, है ना, क्योंकि वो तो CD के नाम से होगा ना। तो अगर कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है तो उसके बारे में आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। फॉर्म P7 आप नाम बता ही रहे हो, है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड।
तो बुक्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। बुक्स क्या है, इसमें कौन कौन सी बुक्स लगानी है, क्या क्या लगाना है, ये रेगुलेशन नंबर 18 बताता है। रेगुलेशन 18 कहता है कि आपको क्या क्या लगाना है। प्रोविजनल फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगानी है फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर made up to the date of declaration under clause F of subsection 2 of section 54A and form P5 submitted by the AR। ठीक है, तो ये लगा। चलिए, ये भी हो गया। एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन पीरियड ऑफ 14 days या तो एप्लीकेशन एडमिट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। Provided that the adjudicating authority shall, before rejecting the application, give notice to the applicant to rectify the defect in the application within 7 days from the date of receipt of such notice from the adjudicating authority। ठीक है, और prepackaged insolvency resolution process shall commence from the date of admission of the application under clause A of subsection 4। ठीक है, तो ये 54C हो गया। तो C से आप याद रख सकते हैं कमेंसमेंट से, है ना। 54C कमेंसमेंट, 54A एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, 54B में बिफोर इनिशिएशन ड्यूटीज हैं, और 54C कमेंसमेंट से रिलेटेड। 54D है फिर आपका ड्यूरेशन से रिलेटेड, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितनी है इसमें, 120। और ये 90 120 days डेज जो है ये 90 डेज के अलावा है या 90 डेज मिला करके है, नहीं एक्स्ट्रा, वो नो सर। अलग है। 90 डेज पहले अलग दिए जाएंगे। हम्म 90 डेज तो दिए जाएंगे कि भाई आप एप्लीकेशन फाइल कर लो। उस 90 डेज में आपने क्या करना है, उसी 90 डेज में वो सब करना है आपने, डिक्लेरेशन, अप्रूवल, ये सब चीजें आपको 90 डेज के अंदर करना। ठीक है, उसके बाद में जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाए तब से यहाँ 120 डेज। इस 120 डेज के भी दो पार्ट है, एक 90 डेज, 90 डेज में आपको अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है, और 30 डेज आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देने हैं, ये है। और अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं हुआ तो 91st डे में आपको एप्लीकेशन लगा देनी है फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये टर्मिनेशन इन फॉर्म P13। हाँ, टर्मिनेशन फॉर्म P13। तो 54D भी हो गया क्लियर आपका। अब 54E, 54E बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि पब्लिक अनाउंसमेंट आपकी फॉर्म P9 में होती है, और P9 Perfect. कोई पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में नहीं है। यस सर, वो सही है। बेसिकली जो क्रेडिटर्स हैं उन्हीं को ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, और क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन आरपी ने देनी है। आरपी किस बेसिस पे देगा, बेसिकली P2 के बेसिस पर, है ना। और अगर उसमें से कोई नाम छूट गया तो वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, उनको फिर आप कोर्ट में ले जा सकते हो। ठीक है, 54 ही बोलता है कि डिक्लेरेशन एंड मॉरेटोरियम, डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PPIRP, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall on the prepackaged insolvency commencement date along with the order of admission declare a moratorium or refer to in subsection 1 read with subsection 3 of section 14 which shall mutatis mutandis apply। अब क्या कहता है, सबसेक्शन 1 विद सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 2 कहां चला गया, 14 का। 14 में बोलता है कि 1 विद 3। 1 में क्या है, 1 में तो यह है कि भाई कोई भी आप सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते। और 3 क्या है, 3 है कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है विच में भी आउटसाइड 14। और 2 में क्या है, 2 में है इसेंशियल गुड्स या क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो क्रिटिकल गुड्स या सर्विसेज या इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि सीडी ही कंट्रोल में है। ठीक है, तो 2 यहां पर नहीं है, 1 और 3। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अपॉइंट ए रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल नेम्ड द एप्लीकेशन इफ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड। ठीक है, अब जो उन्होंने नाम पर अप्रूव किया था, अगर उसकी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो बोर्ड से पूछ लेंगे और बोर्ड जो है रिवर्ट करेगा और उसको अपॉइंट कर देगा. Cause a public announcement of the initiation of PPIRP to be made by the resolution professional in such form and manner as may be specified immediately after his appointment. तो ये इसके लिए रेगुलेशन 19 है. ये रेगुलेशन 19 एक बार देख लेते हैं. रेगुलेशन 19 क्या बोलता है? What regulation 19 says? Regulation 19 talks of the public announcement, and public announcement, as I already told you, it is not to be given in paper. It is to be given in Form P9. The resolution professional shall make a public announcement within 2 days of the commencement of the process. ठीक है. The public announcement referred to in sub regulation 1 shall be in Form P9. ये है Form P9. तो Form P9 क्या है? This is the public announcement for attention of the creditors. So he will say notice is hereby given that the adjudicating authority this bench has ordered the commencement of PPIRP and these are the details. ठीक है. चलिए, ये हमारा चल रहा है. Yes. And the order of moratorium shall have effect from the date of such order till the date on which the PPIRP process comes to an end. तो फॉर्म P9 है. फॉर फॉर्म P9 जो है इट इज बेस्ड ऑन फॉर्म P2. ठीक है. तो 54E हो गया हमारा. E मतलब मॉरेटोरियम या एस्टॉपल भी कह सकते हो. मॉरेटोरियम में बिकॉज सर्टेन एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड, है ना. दी पब्लिक इज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, तो इसको एस्टॉपल से भी याद कर सकते हो, मॉरेटोरियम. ठीक है. 54F. 54F बोलता है, F मतलब फंक्शन. ठीक है. ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है. The resolution professional shall conduct the pre-packaged insolvency resolution process of a corporate debtor during the PPIRP period. ठीक है. और क्या क्या ड्यूटीज हैं? सबसे पहला, confirm the list of claims submitted by the corporate debtor under section 54G. ठीक है. In such manner as may be specified. तो जो भी लिस्ट ऑफ क्लेम्स है सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटा, ये क्या करेगा? उसको कंफर्म कर लेगा. Inform creditors regarding their claims as confirmed under clause A in such manner as may be specified. Maintain an updated list of claims in such manner as may be specified. Monitor the management of the affairs. तो यहां क्या लिखा? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ने लिखा. क्या लिखा? मॉनिटर. और अगर कोई ये मॉनिटर का काम करेगा, सीडी ही सब काम कर रहा है. सीडी फाइल कर रहा है, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न. अगर वो फाइल नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा? सीओसी को बता देगा अगर कोई ब्रीच होता. इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड कन्वीन एंड अटेंड ऑल द मीटिंग्स. प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आ गई. क्या? प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो ये प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन तैयार कर रहा है? सीडी. और उसके बेसिस पर ये आरपी क्या तैयार करेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड. फाइल एप्लीकेशंस फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड. तो वो रेगुलेशंस में पूरी डिटेल दे रखी. क्या क्या पावर्स है इसके? द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स. ये पावर्स है. तो एक बार पढ़ लेंगे जरा. काजल जी एक बार पढ़ेंगे पावर्स. क्या क्या पावर्स? The resolution professional shall exercise the following powers, namely access all books of account, records and information available with the corporate debtor, access electronic records of the corporate debtor from an information utility having financial information of the corporate debtor, access the books of account, records and other relevant documents of the corporate debtor available with the government authorities, statutory auditors, accountants and such other persons as may be specified. Members, board of directors and committee of directors or partners as the case may be of the corporate debtor, appoint accountants, legal or other professionals in such manner as may be specified, collect all information. डी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डी में क्या बोलता है? अगर कोई भी मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है,
कोई कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है या पार्टनर्स की, तो ये सारी मीटिंग ये अटेंड कर सकता है। ठीक है। जैसे कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है भाई, डायरेक्टर्स डिफरेंट कमेटीज बना देते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी हो गई है ना, कोई भी मैनेजमेंट कमेटी हो गई, उन सब की मीटिंग ये अटेंड कर सकता है। And चलिए। sir, also chair the meeting, na sir. Chairperson is also RP. नहीं 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 नहीं, चेयर नहीं करेगा ये। देखो Okay, sir. सीडी कंट्रोल में है, यहाँ चेयर वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, Okay, sir. मॉनिटर कर रहा है ये। Okay. भाई देखो कंट्रोल तो सीडी का ही है ना, हम्म, यहाँ चेयर वाली बात नहीं है। चेयर कब हम्म, करेगा, जब पूरा पावर इसके पास आ जाए। अभी तो क्या है, इसको कहते हैं भाई देखो तुम मीटिंग में आओ, तुम देखते रहो ये सब ठीक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो सीओसी को बताओ। ये है। सही है। यहाँ चेयर वाली बात ही नहीं। हाँ जी। Okay. All information relating to the assets, finances, and operations of the corporate debtor for determining the financial position of the corporate debtor and the existence of any transactions that may be within the scope of provisions relating to avoidance of transactions under Chapter 3 or fraudulent or wrongful trading under Chapter 6, including information relating to business operations for the previous 2 years from the date of prepackaged insolvency commencement date, financial and operational payments for the previous 2 years from the date of prepackaged insolvency commencement date, list of assets and liabilities as on the initiation date, and such other matters as may be specified. Take such other actions in such manner as may be specified. हम्म। तो अब इसमें क्या है, 2 साल का लुक बैक पीरियड है आपका। जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है, जो भी आपकी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, उससे 2 साल पहले की ऑपरेशंस देखने हैं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स देखनी है, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखनी है एज ऑन द इनिशिएशन डेट, मतलब डेट ऑफ फाइलिंग्स। ठीक है। चलिए। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आरपी, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन relating to the corporate data available to the resolution available with them to the RP as and when required by him। ठीक है। क्योंकि डेटर के पास तो है ही, है ना, लेकिन आरपी भी कोई इंफॉर्मेशन बैंक से मांगेगा तो वो उसको भी दे देंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब रह गया पर्सनल, ये जो है उनके ऊपर भी वो भी सारे इसको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। एज में बी रिक्वायर्ड बाय हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट करेंगे, देखो दोनों बातों में फर्क है, रिपोर्ट नहीं कर रहे इसको। अगर कोई भी भाई सीडी तो कंट्रोल में है ही, बोर्ड की पावर तो है ही, बोर्ड सस्पेंड तो हुआ नहीं इसमें, है ना, तो अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो उसको देंगे। ठीक। फीस of the RP and any expenses incurred by him for conducting the PPIRP shall be determined in such manner as may be specified, provided that the committee of creditors may impose limits and conditions on such fees and expenses. ठीक है। Provided further that the fees and expenses for the period prior to the constitution of the committee of creditors shall be subject to ratification by it। ठीक है। भाई जब सीओसी बन गई, सीओसी तो बाद में लिमिट लगा ही सकती है कि देखो इतने तक तो खुद कर सकते हो, उससे बियॉन्ड हमसे पूछ लेना। और जो सीओसी बनने से पहले के एक्सपेंसेस है वो सारे रेटिफाई करने पड़ेंगे सीओसी। ठीक है। द फीस एंड एक्सपेंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 6 शैल बी बोर्न इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफिक। उसके बाद अगला आता है 54G। 54G क्या बोलता है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स कौन बना रहा है, ये बना रहा है सीडी। द कॉर्पोरेट डेटा shall within 2 days of the prepackaged insolvency commencement date submit to the resolution postal the following information updated as on that date in such form and manner as may be specified। क्या है, एक तो लिस्ट ऑफ क्लेम्स along with details of the respective creditors, their security interest and guarantees if any, and preliminary information memorandum। दो चीजें इसको देनी है, एक तो लिस्ट ऑफ क्लेम्स और फिर प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब यहां पर हमारे को देखने वाली बात यह है कि एक तो हमारे को बनता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स P2 के अंदर, और एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स होती है P10 के अंदर। तो P2 और P10 में फर्क क्या है वो एक बार देख लेते हैं। यहां जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स है ना 54G1 में, ये फॉर्म P10 में दे रहा है। ठीक है। पहले इसने क्या किया था, P2 बनाई थी, P2 के बेसिस पर ही
आरपी ने नोटिस दिया फॉर्म P9 के अंदर। अब ये बना रहा है फॉर्म P10, ठीक है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स। अभी फॉर्म P10 क्या है? ये है लिस्ट ऑफ क्लेम्स, ठीक। पहले तो बनाई थी बुक्स के बेसिस पर, अब ये बनाई है क्लेम्स के बेसिस पर, ठीक। इसको दोनों साइन कर रहे हैं, कौन? कॉर्पोरेट डेटर भी और रेजोल्यूशन ट्रस्टी। हम्म, ये हो गया। यहां पर हम चल रहे थे लिस्ट ऑफ क्लेम्स। चलिए 54G पर थे हम लोग। हम्म, तो ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स बन रही है कौन से फॉर्म में? P10 के अंदर। और ये बना कौन रहा है? CD। अगर मान लीजिए किसी का नाम छूट गया और उसको लॉस हो गया तो क्या होगा? जो भी प्रमोटर डायरेक्टर उस टाइम था रिस्पॉन्सिबल, जब तक कि वो ये ना कह दे भाई मुझे मेरे को पता नहीं था या मेरी नॉलेज की बिना बनाई गई है, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। और फिर उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हो, टू मूव ए कोर्ट हैविंग jurisdiction फॉर सीकिंग कंपेंसेशन फॉर सच लॉस और डैमेज, ठीक। यहां वर्ड यूज किया गया कोर्ट, एनसीएलटी नहीं यूज किया। नाउ 54H। 54H बोलता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। मैनेजमेंट तो बोर्ड बोर्ड के पास ही रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, the management of the affairs of the corporate data shall continue to vest in the board of directors or the partners, as the case may be, of the corporate data, subject to such conditions. The board of directors or the partners, as the case may be, of the corporate data shall make every endeavor to protect and preserve. तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की ड्यूटी भी किसकी है? बोर्ड की, ठीक है। एंड मैनेज इट्स ऑपरेशंस एज ए गोइंग कंसर्न, एंड द प्रोमोटर्स, members, personnel and partners, as the case may be, of the corporate data shall exercise and discharge their contractual or statutory rights and obligations, ठीक है। नाउ 54I। 54I बोलता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब आप कहोगे भाई CD कंट्रोल में है, एक RP भी हो गया, तो अब COC का क्या रोल है? COC का बेसिकली यहां रोल है कि एक तो RP के जो भी एक्सपेंसेस है उसको रेटिफाई करना, ठीक है। क्योंकि आरपी के पास भी पूरी पावर नहीं है यहां पर PPI RP में, है ना। आरपी किससे? आरपी के एक्सपेंसेस को कौन रेटिफाई कर रहा है? COC। और बेसिकली फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्लान्स है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान आएगा उसको पास करना या फेल करना, इसका अप्रूव तो यही करेगी ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो रेजोल्यूशन पेस्टल शैल विद इन 7 days ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी commencement डेट constitute a committee of creditors based on the list of claims confirmed under clause A of subsection 2 of section 54F, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये क्या करेगा? विद इन 7 days एक कमेटी बना देगा। 2 दिन के अंदर वो लिस्ट ऑफ क्लेम्स इसको दे देंगे CD, है ना, और 7 दिन के अंदर ये कमेटी बना देगा। Provided that the composition of the committee of creditors shall be altered on the basis of updated list of claims in such manner as may be specified, and any such alteration shall not affect the validity of any past decision of the committee. Or first meeting of the committee of creditors shall be held within 7 days of the constitution of the committee of creditors. 7 दिन के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और उसके 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग करनी है, ठीक है। The provisions of section 21 except subsection 1 thereof shall mutatis mutandis apply in relation to committee of creditors under this chapter। मतलब ये जो कमेटी होगी इसके प्रोविजंस सेक्शन 21 में देखने हैं आप। और सेक्शन 21 क्या बोलता है? सेक्शन 21 में भी बोलता है बेसिकली कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उसमें भी 21 का भी क्या कर रहा है? 1 छोड़ करके एक्सेप्ट सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 1 बोल रहा है
the IRP shall, after collation of all claims received against the corporate debtor and determination of the financial position, shall constitute. ठीक है, तो 21 वाले सारे प्रोविजंस इस पर लागू होंगे एक्सेप्ट सबसेक्शन, provided that for the purpose of this subsection reference to resolution professional under subsection 9 and 10 of section 21. अब section 21 का 9 और 10 अगर हम देखें तो 9 और 10 में बात क्या कर रहा है वो, बेसिकली 9 और 10 में वो ये कहता है कि कमेटी कुछ भी चीज मांग सकती है आरपी से, ठीक है, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद इन 7 डेज। अब यहां पर क्या है, यहां आरपी के अलावा बोर्ड के पास भी पावर है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई जहां जहां वर्ड आरपी लिखा है ना उसको कॉर्पोरेट डेटर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल समझो। मतलब अगर सीडी से इंफॉर्मेशन मांगेगी सीओसी तो सीडी को देनी है, और अगर आरपी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी तो आरपी को वो इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ये मतलब है। तो 54I भी हो गया। 54J, 54J क्या बोलता है, वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब नॉर्मली तो हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली तो पढ़ा कि सीडी के पास ही सारी पावर है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज, है ना, जितनी भी कंप्लायंसेस है सब उसी को करनी है। लेकिन अब इनको लगता है कि भैया ये तो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, the affairs of the corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner or there has been gross mismanagement of the affairs of the corporate debtor। तो वो क्या करेंगे, एक 66% मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करें, ठीक है, कि भैया ये जो मैनेजमेंट है ये आरपी को दे दिया जाए। अभी तक मैनेजमेंट किसी के पास था, सीडी के पास। तो 54J विद 66% मेजॉरिटी, क्या क्या कंडीशंस है दे रखी, ठीक है, या तो कोई अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है तो इट शेल पास एन ऑर्डर वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद द रेजोल्यूशन। ये ए को एप्लीकेशन लगाएंगे और ए जो है ये ऑर्डर पास कर देगा। ये रेगुलेशन 50 में दिया गया, और रेगुलेशन 50 में कहा गया कि कौन से ऑर्डर कहां पास करेगा ये, तो आपका है P14 में, ठीक है, ये इसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी P14 में। P14 क्या है बेसिकली, कि इसमें आरपी एप्लीकेशन लगा रहा है फॉर वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट विद रेजोल्यूशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया 54J। अब अगला सेक्शन आता है 54K। अच्छा एक और पढ़ लेते हैं इसमें। अब वो ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस चैप्टर द प्रोविजंस ऑफ। अब देखो सेक्शन 14 का हमने 2 और 2A वहां छोड़ दिया था, पहले छोड़ा था ना, जब एप्लीकेशन एडमिट हुई थी हमने क्या बोला था, सेक्शन 14(1) और 14(3) बोले थे। हमने कहा था ना 2 और 2A छोड़ दिए इन्होंने। अब यहाँ पर 2 और 2A भी आ गए, है ना। ये कब आ गए, जब मैनेजमेंट आरपी के पास आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 17, सेक्शन 17 क्या है, सेक्शन 17 बोलता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय आईआरपी, तो सेक्शन 17 में लग गया। क्लॉज E2G ऑफ सेक्शन 18, E2G क्या है, फाइल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और F क्या है, कंट्रोल एंड कस्टडी, कंट्रोल एंड कस्टडी भी इसको लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये सारे ये एडिशनल सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि पहले मैनेजमेंट सीडी के पास था, अब मैनेजमेंट आ गया आरपी के पास, ठीक है। चलिए नाउ 54K। 54K क्या बोलता है, कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि बेस रेजोल्यूशन प्लान तो सीडी ने दे दिया। बेस रेजोल्यूशन प्लान कहां डिफाइंड है, बेस रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन दे रखी है कहीं, यस सर, कहां, सेक्शन 5 में, सेक्शन सेक्शन 5 सब सेक्शन 2A। बेस रेजोल्यूशन प्लान मीन्स a resolution plan
provided by the corporate debtor under clause C of subsection 4 of section 54A. तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2A अगर हम देखें तो वहां बेस रेजोल्यूशन प्लान डिफाइंड है, ठीक है। द कॉर्पोरेट डेटर शैल सबमिट द बेस रेजोल्यूशन प्लान referred to in clause C of subsection 4 of section 54A to the RP within 2 days of the prepackaged insolvency commence, 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये जो प्रीपैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उसके 2 दिन के अंदर ये एक बेस रेजोल्यूशन प्लान बना के दे दे। बेस रेजोल्यूशन प्लान तो पहले ही बना रखा है ना, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल ली थी तब भी तो दिया था ना बेस रेजोल्यूशन प्लान, वही होगा। चलिए, अब committee of creditors may provide the corporate debtor an opportunity to revise the base resolution plan prior to its approval under subsection 4 or invitation of prospective resolution applicants under subsection 5 as the case may be। अच्छा, अब बेस रेजोल्यूशन प्लान इसने दे दिया, अब सीओसी कहती है कि भैया इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, ठीक है। अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो हम मजबूर हो जाएंगे, बाहर वालों को बुलाना पड़ेगा, है ना। तुम ही थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। द रेजोल्यूशन प्लान्स एंड द बेस रेजोल्यूशन प्लान्स अंडर दिस सेक्शन शैल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 30 क्या बोलता है, वो लिक्विडेशन वैल्यू वगैरह वगैरह की बात करता है, ठीक है। कैपेबिलिटी एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कोई लीगल कोई उसमें इंफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, वो सब बातें जो सेक्शन 30 में बताई गई, ठीक है। एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2 एंड 5 ऑफ सेक्शन 30 शैल मुटेंडिस मुटेंडिस अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। The committee of creditors may approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors। यहां पर क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर देखो बेस रेजोल्यूशन प्लान में कुछ तो कम ऑफर करेगा ही वो, है ना। सारा लोन तो देगा नहीं, वो सारा ही देना होता तो डिफॉल्ट ही क्या होता। अब वो ये कह सकता है भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को मैं 70% दे दूंगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट कर दो, ठीक है। ये तो अगर इफ इट डज नॉट इंपेयर द क्लेम्स ओड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स तो कमेटी उसको अप्रूव कर सकती है, ठीक है। ये पहली स्टेज है। अच्छा, अगर मान लीजिए कमेटी ने अप्रूव नहीं किया प्लान को, या बेस रेजोल्यूशन प्लान इंपेयर्स एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो उन दोनों सिचुएशन में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेगा टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान और प्लान्स टू कंपीट विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान। अब यहां देखो क्या वर्ड लिखा, टू कंपीट विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान। कंपीट को समझने के लिए आप समझिए कि ये जो सीडी है ये एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है। ये आखिर तक रहेगा, कोशिश करेंगे इसको ही कंपनी मिल जाए, है ना, क्योंकि ये एमएसएमई। द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान्स, क्योंकि जो नए रेजोल्यूशन प्लान्स भी आएंगे ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें करते क्या है भाई, सबसे पहले तो कह देंगे देखो जी बेस रेजोल्यूशन प्लान आप लाए, पहले तो क्या इसको रिवाइज कर दो तो और अच्छा है, नहीं रिवाइज करोगे तो हमें और मंगाने पड़ेंगे, हो सकता है वो रिवाइज कर दें, ठीक है। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बेस रेजोल्यूशन प्लान को ही अप्रूव कर सकते हैं अगर वो उसमें कोई इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं है, ठीक है। अब जो प्लान बेस रेजोल्यूशन प्लान आया, हो सकता है उसको पसंद ही ना आए सीओसी को, या फिर बेस रेजोल्यूशन प्लान इट इंपेयर्स एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो फिर वो कहेंगे भाई आरपी को कि ये ज्यादा ही सियाना बन रहा है ना, ये कुछ भी नहीं देना चाह रहा, तो आप नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुला लो। फिर भी हम इसको साथ में रखेंगे, मतलब ये कि जैसे अगर 5 रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे ना, तो करते क्या है 5 में से बेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका कंपटीशन कराएंगे इसके साथ, बेस रेजोल्यूशन प्लान वाले जो सीडी के साथ, ठीक है। एक टिक साइज डिटरमिन कर लेते हैं, और टिक साइज क्योंकि जितने भी प्लान्स होते हैं उसको एक स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। प्लान्स में तो बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं,
है ना, मैं इतनी फंडिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतने साल में इंप्लीमेंट करूंगा, इतना परसेंट इम्पेयरमेंट दूंगा। डिफरेंट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की डिफरेंट कंडीशंस है। तो अब उसको कंक्रीटाइज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्कोर बेस्ड ऑन इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो जो स्कोर आ जाता है, दोनों दो स्कोर आ जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 प्लान्स आए, तो एक तो कंडीशन ये रहेगी 5 में से एक प्लान जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है। अब सिग्निफिकेंटली बेटर क्या है, ये भी सीओसी डिसाइड कर लेती है पहले से कि भाई अगर प्लान का स्कोर 20% से ज्यादा है तो फिर वो सिग्निफिकेंटली बेटर है। अगर सिग्निफिकेंटली बेटर होगा तो नया जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको ही कंपनी दे देंगे, और अगर सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है तो फिर दोनों में कंपटीशन कराया जाए। ये है 54K बेसिकली। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए 6 से। काजल जी एक बार पढ़ लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, और फिर बाकी फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. हम्म The resolution applicants submitting resolution हम्म plans per invitation under subsection 5 shall fulfill such criteria as may be as laid down with the resolution profession down by the resolution professional with the approval of the committee of creditors having regard to the complexity and scale of operations of the business of the corporate debtor and such other conditions as may be specified. हम्म Resolution professional shall provide to the resolution applicants the basis for evaluation of resolution plans for the purposes of subsection 9 as approved by the committee of creditors subject to such conditions as may be specified, and the relevant information referred to in section 29 which shall mutandis apply to the proceedings under this chapter in such manner as may be specified. The resolution professional shall present to the committee of creditors for its evaluation resolution plans which conforms to the requirements referred to in subsection 2 of section 30. The committee of creditors shall evaluate the resolution plans presented by the resolution professional and select a resolution plan from amongst them, मतलब उनमें where से on the basis एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्लान्स आए उनमें से एक सेलेक्ट कर। चलिए, of such criteria as may be laid down by it, the committee of creditors decides that the resolution plan selected under subsection 9 is significantly better than the base resolution plan. Such resolution plan may be selected for approval under section 12. हाँ, अब देखिए वो जो प्लान आया, अब वो दो तरह का हो सकता है। पहला सिग्निफिकेंटली बेटर है, अगर सिग्निफिकेंटली बेटर है तो उसी को अप्रूव कर देंगे, और अगर सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है तो दोनों का कंपटीशन करा दें। किस किस का, Provided एक तो जो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान इनमें से लिया, और एक जो सीडी का प्लान है। चलिए, provided that the criteria laid down by the committee of creditors under this subsection shall be subject to such conditions as may be specified. Where the resolution plan selected under subsection 9 is not considered for approval or does not fulfill the requirements of subsection 10, it shall compete with the base resolution plan in such and subject to such conditions as may be specified, and one of them shall be selected for approval under subsection हाँ, 12. अब ये जो compete वाली बात है ना, तो compete का क्या है कि एक स्विच चैलेंज मैकेनिज्म होता है। स्विच चैलेंज मैकेनिज्म में क्या करते हैं, ये बिडिंग की तरह से होता है। दो प्लान्स आ गए हमारे पास, है ना, और उन दोनों प्लान्स में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर सिग्निफिकेंटली बेटर है नया, फिर तो उसको ही कंपनी दे देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है, और सिग्निफिकेंटली बेटर भी कौन डिसाइड करेगा, सीओसी। यस, The नेक्स्ट। resolution plan selected for approval under subsection 10 or subsection 11 as the case may be approved by the committee of creditors for submission to the adjudicating authority, provided that where the resolution plan selected for approval under subsection 11 is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file an application for termination of the prepackaged insolvency resolution process in such form and manner as may be specified. तो ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट हुआ ना अंडर सबसेक्शन 11, ये जो है ये सीओसी ने अप्रूव नहीं किया। ठीक है, कंपटीशन के बाद पहले कंपटीशन कराया दोनों का, है ना, कंपटीशन के बाद में एक आ गया उनमें से, और अगर सीओसी उसको अप्रूव नहीं करती तो फिर क्या करेंगे, वो टर्मिनेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। हाँ जी। The approval of the resolution plan under subsection 4 or subsection 12 as the case may be by the committee of creditors shall be
by a vote of not less than 66% of the voting shares after considering its feasibility and viability, the manner of distribution proposed, taking into account the order of priority amongst creditors as laid down in subsection 1 of section 53, including the priority and value of the security interest of a secured creditor and such other requirements as may be specified. While considering the feasibility and viability of a resolution plan where the resolution plan submitted by the corporate debtor provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor, the committee of creditors may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor, अब provided यहाँ पर that क्या रहा है, यहाँ क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि सीडी ने जो प्लान दिया है, सीडी कह रहा है कि भाई आप 70% ले लो, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ क्लेम्स हो रहा है और इम्पेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स लिख रहा है। एनी क्लेम्स मतलब यहां फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले क्लेम भी हो सकते हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले क्लेम भी हो सकते हैं। इनिशियली जो था, इनिशियली तो कहा गया कि भैया देखो ऐसा है कि इफ यू डू नॉट इम्पेयर द क्लेम्स ऑफ एनी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वी मे स्ट्रेट अवे सेलेक्ट योर प्लान। यहां पर क्या है, यहां दूसरे भी आ गए, है ना। तो अब अगर कोई भी इंपेयरमेंट हो रहा है, सीडी ने एक प्लान दिया, सीडी ने प्लान में कहा कि भैया मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर को 70% दूंगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को 90% दूंगा, कर सकता है वो, ठीक है। तो यहां वर्ड क्या लिखा, एनी क्लेम्स, यहां फाइनेंशियल क्लेम्स नहीं लिखा। तो सीओसी कहेगी कि भैया जब तुम उनको सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहे हो तो तुम भी कुछ सेक्रीफाइस करो, तुम भी अपनी शेयर होल्डिंग या वोटिंग या कंट्रोल राइट्स को कम करो, डाइल्यूट करो, ठीक है। मतलब क्या कि आप उनको शेयर्स दे दो अपनी कंपनी में, ठीक है, ये मतलब है। चलिए, provided that where the resolution plan does not provide for such dilution, the committee of creditors shall, prior to the approval of such resolution plan under subsection 4 or subsection 12, as the case may be, record reasons for its approval. The resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors under subsection 4 or subsection 12, as the case may be, to the adjudicating authority. Expression 1. For the removal of doubts, it is hereby clarified that the corporate debtor, being a resolution applicant under clause 25 of section 5, may submit the base resolution plan either individually or jointly with any other person. Exception 2. For the purposes of subsection 4 and 14, claims shall be considered to be impaired where the resolution plan does not provide for the full payment of the confirmed claims as per the updated list of claims maintained by the resolution professional. हाँ ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में एक इन्होंने ना रेगुलेशंस में इलस्ट्रेशन दे रखी है। ये इलस्ट्रेशन दे रखी है, स्कोरिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप, रेगुलेशन नंबर 42, ठीक है। तो फिर इन सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके जी, गुड नाइट। तो आज चलो अच्छा डिस्कशन हो गया, और बाकी डिस्कशन जो है फिर कल इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग, कल भी क्लास करेंगे और कल इसको कंप्लीट कर देंगे। Thank you, sir. ओके, Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank थैंक you. यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.